Hello students, once again welcome Pragya online classes. Today actually we have already discussed the three chapter of the business study. First chapter the significance of management and principle of management, and third one is still going on. Just a few topics remaining to complete that chapter. But before moving the next topic, I have a little doubt in my mind. In the second chapter is a very important chapter. That is totally the relate to the principle of the management of principle of Henry Fayol and the principle of Andrew Taylor. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कुछ उसमें कुछ डाउट है प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर. तो सो आई डिसाइड to explain each and every principle of management of the Henry Fayol and Andrew Taylor with the help of the examples. अगर मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाता हूँ हर एक प्रिंसिपल्स को, तो आपको समझने में आसानी होगा. दैट इज वाई आई टेक डिसीजंस टू revise all the principles of management with the help of the examples before moving the next topic of our chapter. So I am here to discuss the principle of management with the help of the examples. और जो पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, देखिए मैंने कई बार मैंने बताया चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. ये हैव स्टडीड द ऑल द प्रिंसिपल मैनेजमेंट. और मैंने बताया कि जब भी आप जो है कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडी का, किसी भी चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे प्रिंसिपल मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो आप जो है उसके की वर्ड्स को जो है आप उसको जो है नोट डाउन करिए, उसको मेमोराइज करिए. ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर इजीली टू आइडेंटिफाई विच क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है. ये मैं बात जो है हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ. ओके, द क्वेश्चन इज the salesman of ABC Limited could not achieve his sales target of 1000 units. On inquiry, it was found that he was not allowed to take decision related to give discount or credit to any of his customer. State the principle of management violated in this case. The question is here, which principle of management is not followed here? कौन सा principle जो है followed नहीं हो रहा है. ठीक है, तो first to understand what is the question. अब इसके बाद से जो है आपको देखना है केस स्टडी को जो है एक बार इत्मीनान से पढ़ना है, तभी आप जो है पता कर पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से किस टॉपिक से है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है could not achieve his sales target of 100 units. On inquiry, it was found that he was not allowed to take decision. ठीक है, इस सेल्समैन को जो 100 यूनिट्स जो है इसको टारगेट मिला था, but it was found that he was not allowed to take decisions related to discount or credit. ठीक है, means he having a responsibility, he having a target, the manager, his managers given him target to of 100 units, but he is not taking decisions related to the discount or credit. देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है 1000 सेल्स करने का, लेकिन इसके पास जो है राइट नहीं है, या फिर he having no right to take decisions to give the credit or discount to his customers. तो इस लाइन से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो ऑफ मैनेजमेंट है वो हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स है, और वो प्रिंसिपल इज नोन एज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट प्रिंसिपल इज नोन एज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट इज द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयोल? व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या कहते हैं? देखिए, authority and responsibility in every organization there is an authority, there is a responsibility, but Henry Fayol says that there should be a balance between the authority and responsibility. There should be a balance between the authority and responsibility. So authority is to right to give orders and obtain obedience. Is to right to give orders according to the Henry Fayol. What is meant by authority? Authority is the right to give orders and obtain obedience. And what is the responsibility? Responsibility is an obligations over the employees or subordinates to perform the job on time. This is the authority and responsibility. So, this is the meaning of authority and responsibility.
Henry Fayol says there should be a proper balance between the authority and responsibility. अगर जो है if any employee having a more authority as compared to his responsibility, he can misuse his power in the organizations and it may hamper the business operations. ठीक है. Similarly, in the second hand, if the person is having a more responsibility as compared to the authority, again the same problem arises here, that the employee could not achieve his target on the time, he could not do the work properly because he having a overburden on his head to do the works because he have a no responsibility. So, and दूसरी बात इसके हैंनरी फैयल ये कहते हैं कि हर एक लेवल में जो है जो मैनेजरियल जो पावर है उसको बचाने के लिए मैनेजरियल पावर का मिसयूज ना हो, मैनेजरियल पावर का मिसयूज ना हो किसी भी लेवल पर जो है, उसके लिए जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अगेन द हैंनरी फैयल प्रोसीड इन दिस टॉपिक. वो कहते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ authority and responsibility, that is the formal responsibility and the informal responsibility. Again, official responsibility and the personal responsibility. Official responsibility means the authority, the power, a manager who got the power from his subordinate, from his superiors, and delegate his power to his subordinates in order to get the things from his junior or subordinates. That is known as the officious authority. And second one is the personal authority, means the subordinates having a personal power to instruct his employees, to guide his subordinates to get the works from him. So there are officials and personals, there is a formal authority, there is an informal authority. ठीक है. तो हम इसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं और यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इस केस स्टडी के अंदर जो है दिख रहा है कि इन दिस केस स्टडी दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड हियर. ठीक है. Whenever we are going to solve the problems, again I am saying to first find out the keywords. देखिए, what is the keywords of the authority and responsibility दिया हुआ है यहाँ पर. मैच, पैरिटी, इक्वलिटी एंड बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. Allocation of authority as per work assigned to individuals. It is a very important. This is the balancing between the authority and responsibility. यहाँ दिया हुआ है allocation of authority means if the managers, if the CEO, if the head of your अगर आपका हेड जो है अगर अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है तो वो डेलीगेशन जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके असाइंड वर्क के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. अदरवाइज जिसको हम डेलीगेट कर रहे हैं अगर वो जो एक्सेस हो जाता है तो उस पावर का मिसयूज कर सकता है और वो कम होगा तो वो जो है अपने वर्क को जो है ऑन टाइम नहीं सॉल्व कर पाएगा. ठीक है. सेकंड कीवर्ड्स ऑफ द सेम authority responsibility is giving authority matching to target or responsibility of the employees. Already I explained this point. ठीक है. So this is the keywords in every point, in every topic of the chapter of business organizations. You have to find out the keywords. उसको आप memorize करें, उसको learn करें ताकि आपको आसानी से हो. So these are the keywords of the authority responsibility. ठीक है. अगर जो है अगर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, उसमें जो एडवर्सली इफेक्ट क्या पड़ सकता है कंपनी के ऑपरेशंस के उसके डेवलपमेंट के लिए. देखिए, व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दे फॉलो द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयोल. ठीक है. देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या होता है, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बिकॉज अथॉरिटी जो है असाइन किया गया अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो वहां पे मिसयूज होने का चांस नहीं है. हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट डिले. ठीक है. तो जो अथॉरिटी असाइन किया गया है विच इज वेरी सिमिलर टू द असाइंड जॉब, उससे क्या होगा, हम अपने काम को जो है ऑन टाइम कर सकते हैं, कोई भी डिले नहीं होगा. अगर जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फॉलो नहीं हो रहा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. डिले इन वर्क ड्यू टू less authority. Delay in work due to less authority. It means कि जो भी वर्क दिया गया है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी और पावर नहीं दिया गया. मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. इफ एक्सेस अथॉरिटी इज गिवन टू द एम्प्लॉय दे कैन मिसयूज.
ओवरबर्डन ऑफ वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम एम्प्लॉय को पावर नहीं दे रहे हैं विद सिमिलर टू द असाइंड जॉब, तो उसके ऊपर वर्क का बर्डन रहेगा, वो अपने काम को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस क्वेश्चन के अंदर यही बोल रहा है, द सेल्समैन ऑफ द एबीसी लिमिटेड कुड नॉट अचीव हिज सेल्स टारगेट ऑफ 1,000 यूनिट्स ऑन इंक्वायरी। It was found that he was not allowed to take decisions related to give discount or credit to any of his customer। ठीक है, तो उस पर्सन के पास जो है 1,000 टारगेट सेल्स का टारगेट है, वो कर सकता है, वो सेल्स पर्सन जो है वो कर सकता है, वो अपने कस्टमर को जो है 1,000 यूनिट सेल कर सकता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है अपने कस्टमर को जो है डिस्काउंट देने के लिए या फिर जो है क्रेडिट टाइम देने के लिए। अगर वो जो है उसको अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर उसको जो है मैनेजर ने उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया होता तो वो अपने टारगेट को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो है अगर ये इस क्वेश्चन के अंदर जो सेल्समैन अपना टारगेट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जो मैनेजर्स है ही हैविंग नो राइट टू पनिश देम। ठीक है, उसको पनिश नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसको जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिमिलर उसको अथॉरिटी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अगर वो एक्शन ले भी रहा है अपने सेल्समैन के अगेंस्ट में, तो फर्स्ट ही हैज टू लिसन, वो जो है अपने एम्प्लॉय को सुने कि भाई किस प्रॉब्लम से जो है उसको जो है अपने टारगेट को फुलफिल करने में दिक्कत हो रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम मूव करेंगे, दैट इज इनफ।